Hi, this is CA Piyush Chandak, Chairman Nasik Vikasa. Dear students, as the CA exams are postponed, you must have been taking some break from the studies. But you must note that your exams are postponed, not your goals. Therefore, to keep you focused on your goals, Nasik branch of Vikasa is coming with an interesting activity for all of you. As you teach, you learn, wherein you are supposed to teach any concept of any subject of your choice in an innovative and interesting way. You can use any theme like any popular song, dialogues, pictures, drawings, or videos and explain any educational topic. We will post your contributions on our official Instagram channel and also mention those in our newsletter. So, and all the best 3 stories will definitely get a surprise. So buckle up guys and girls and do something for Nasik Vikasa. We are posting some sample videos for your guidance and reference. Please check those and all the best. Thank you. Hello guys, I am Barkha Dudani, committee member of Nasik Vikasa. So today I am going to teach you one of the topic of Income Tax Act, that is provisions for filing of income tax return, that is section 139. So चलो आज सुनते हैं सेक्शन 139 की कहानी कुछ नए सुरों के अंदाज में. So today I am going to relate this topic section 139 with the song तेरा घाटा. कुछ सोच के ये सेक्शन बनाया होगा तुमने, इस इनकम को भी तोला होगा तुमने. सो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बात करता है मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. सो किन किन लोगों को अपना रिटर्न ऑफ इनकम कंपलसरी फाइल करना पड़ता है. नंबर 1 इज कंपनी एंड फर्म्स. नंबर 2 इज individual, HUF, AOP, BOI and artificial judicial persons having total income exceeding basic exemption limit have to file the return of income mandatorily. Number 3 is any person during the previous year has deposited rupees more than 1 crore in one current account or many current accounts with a bank or a cooperative bank, or has expended rupees more than 2 lakh for travelling to a foreign company for himself or for any other person, or has expended rupees more than 1 lakh for consumption of electricity, have to file the return of income mandatorily. Now, what's the due date for filing return of income? So, for companies and person other than companies whose accounts are required to get audited and a partner of a firm whose accounts are required to get audited have to file the return of income till 31st October of assessment year, and rest all the assessees have to file the return of income till 31st July of assessment year. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो तो रिटर्न फाइल न करता भारी लॉस हो जाता. अब ना है इनकम तो ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा दिया हमने. नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बात करता है लॉस रिटर्न की. इट मीन्स अगर आपके पास इनकम नहीं है तो भी चलेगा, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. कौन कौन से लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नंबर 1 इज बिजनेस लॉस, नंबर 2 इज स्पेसिफाइड लॉसेस, नंबर 3 इज स्पेक्यूलेटिव लॉसेस, नंबर 4 इज लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, एंड नंबर 5 इज लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस. लेकिन ये सारे लॉसेस हम तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे जब आपने अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर टाइम पे फाइल किया होगा. सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बात करता है बी लेटेड रिटर्न की. इट मीन्स सीबीटीटी ने आपको एक और चांस दिया कि अगर आपने अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया है तो आप बी लेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो. कब हम अपना बी लेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? सो बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले आएगी उस तारीख तक हमें अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है. नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बात करता है रिवाइज रिटर्न की. सो अगर असेसी को ऐसा लगता है कि उसके रिटर्न में कुछ गलत हो गया है, कुछ मिस हो गया है, उसको रेक्टिफाई करना है, सो वो अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता है. तो वो अपना रिटर्न कब रिवाइज करेगा? जब उसने अपना ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल किया होगा या बी लेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 फाइल किया होगा, तभी वो अपना रिटर्न को रिवाइज कर सकता है. कब तक रिवाइज कर सकता है? सो बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनमें से जो भी पहले आएगा उस तारीख तक आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना है. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो तो रिटर्न फाइल न करता भारी लॉस हो जाता. पर याद आएगी जब भी तुम्हारी
शिकायतें न होंगी, बस दुआ रहेगी। सो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 बात करता है डिफेक्टिव रिटर्न की। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो वो आपको एक चांस देता है कि आप अपने रिटर्न को करेक्ट करो, उस डिफेक्ट को आप रेक्टिफाई करो। सो द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफाई द रिटर्न इज़ 15 डेज। एओ आपको 15 दिन का टाइम देता है कि आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एओ आपको 15 दिन से ज़्यादा भी टाइम दे सकता है, लेकिन उसके लिए जस्टिफिकेशंस चाहिए। अगर एओ इज़ जस्टिफाइड कि आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा टाइम दे देगा। अब और क्या कहना होगा हमने, करना था जो वो कर लिया तुमने। इट मीन्स अब एओ ने तो आपको टाइम दे दिया कि आप 15 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर लो। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या किया, आपको जो करना था आपने वो कर लिया। सो अगर 15 डेज़ के अंदर आपने अपना रिटर्न को रेक्टिफाई कर दिया, उस डिफेक्ट को हटा दिया, तो एओ ऐसे मानेगा कि आपने अपना रिटर्न करेक्टली फाइल किया है एंड आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आप 15 डेज़ के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो एओ विल कंसिडर इट एज इनवैलिड रिटर्न। ऐसा माना जाएगा कि वो रिटर्न आपने कभी भरा ही नहीं था। So that's it with my concept. One more thing guys, that don't forget to follow Nasik Vikasa at Instagram channel, at Telegram channel and YouTube channel. So please press the bell icon and subscribe the YouTube channel of Nasik Vikasa. Thank you.